इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रसारण संपूर्ण भारत वर्ष में वेबकास्ट के द्वारा किया जा रहा है। गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार यह कार्यान्वयन समारोह न केवल पुलिस मुख्यालय में बल्कि जम्मू कश्मीर के 200 से अधिक पुलिस स्टेशनों में भी आयोजित किया जा रहा है। आज के हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मैं सर्वप्रथम जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक माननीय श्री आर स्वयं महोदय को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वे आज के कार्यक्रम का आरंभ अपने स्वागत वचनों से करें। माननीय श्री आर स्वयं महोदय। Ladies and gentlemen, may I please request you all to be seated. मूल तत्वों व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव अधिकार, सबके साथ समान व्यवहार, न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर बनाए गए कानूनों को आज भारत लागू कर रहा है। इस ऐतिहासिक परिवर्तन के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि अंतिम व्यक्ति तक न्याय कैसे पहुंचेगा। हमारी संस्कृति में कहा गया है, न्याय मूलम सुराज्यम स्यात्, अर्थात न्याय सुशासन या सुराज का मूल तत्व होता है। भारत के प्राचीन न्यायविदों महर्षि वेदव्यास, याज्ञवल्क्य Cast some onerous responsibility on the Indian police, which have been fighting terrorism for the last 35 years, depleting our core investigative foundation. It is crystal clear by now that ensuring public peace, security and order, should rule of law, presupposes that there shall be a semblance of peace and order, so that investigators, witnesses, prosecutors on trial courts are able to do their duty free from fear. The national security adversary very cleverly sets up a regime of fear. Justice of Jammu, Kashmir and Ladakh High Court, Justice Sri N. Koteshwar Singh Ji, Chief Secretary Sri Atul Lulu Ji, Advisor to the Honorable Lieutenant Governor Sri Rajiv Bhatnagar Ji, esteemed Justices of the High Court, senior judicial officers, my esteemed colleagues in the civil and police administration, and dear friends. First and foremost, I extend a warm welcome to the Honorable AG, Honorable Chief Justice, and all the dignitaries who have honored us with their presence today. Your support and involvement are invaluable, and we are truly grateful for your participation in today's very important event. Today marks a pivotal moment in our commitment to justice, security and the rule of law. As we come together to celebrate the implementation of new criminal laws in Jammu and Kashmir. With the vision of the government of the centre and the mission mode determination of the NHA and the unwavering support of Honorable AG, Chief Justice, Chief Secretary and the Home Secretary in JNK, we have reached this significant day. I am indebted to all of you, sir, for the constant support and guidance given to us in fulfilling our requirements for the implementation of these laws. These new laws symbolize a paradigm shift in our approach to justice. They embody country's commitment to a system that is efficient and effective and yet fair and transparent, reflective of the aspirations of a rising and aspiring India. The Bharatiya Nyaya Samhita aims to provide a legal mandate for restorative justice and uphold the rights of the victims. This law shifts the focus from punishment to rehabilitation, addressing the root causes of crime and offering offenders an opportunity to reform. The Bharatiya Nagarika Suraksha Samhita is a transformative law that introduces mechanisms to expedite justice, reducing delays and ensuring timely trials. This law also emphasizes
the protection of the rights of the accused while balancing it with public safety and security. The Bharatiya Sankhya Adhiniam modernizes our evidence law, replacing the Indian Evidence Act of 1872. This law incorporates modern technology to ensure the integrity and accuracy of evidence, strengthening the credibility of our adjudication process. The new law provides for severe penalties for crimes against women and children, including life imprisonment or death for heinous crimes, and stringent measures against child exploitation. Police have been granted increased legal mandate in certain domains, accompanied by greater responsibility, particularly in the utilization of CCTVs, which now features real-time capabilities. It is now obligatory to maintain records of the arrested persons with grounds of arrest at both the police stations and district levels. These records must be digitally displayed, reinforcing transparency and accountability in law enforcement procedures. There have been significant revisions in rules concerning arrests, remands, bails, preventive detentions, and medical examinations, particularly for victims and accused in cases of rape or under the POCSO Act. Bharatiya Nagarika Suraksha Samhita has introduced the use of technology at all stages, from crime scene visits to investigation till trial. This is going to be a game changer in terms of speedy trials and transparency in investigation. अगर मैं इसके निर्माण की यात्रा के विषय में थोड़ी चर्चा करूं, तो सन 2019 में भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अंग्रेजों के समय में बने सभी कानूनों पर समीक्षा का एक निर्देश दिया था। उसके पश्चात अगस्त 2019 में सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, न्यायिक अकेडमी, लॉ यूनिवर्सिटी, पार्लियामेंट मेंबर्स, विधायक, सिविल सोसाइटी तथा जनता से सुझाव मांगे गए। सितंबर 2019 में सभी राज्यपालों और उपराज्यपालों को पत्र लिखकर भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने सुझाव मांगे। 2020-2021 में भी स्टेक होल्डर से विस्तृत चर्चा हुई और कुल मिलाकर 3200 सुझाव भारत सरकार को प्राप्त हुए, जिसमें 200 के आसपास आईपीएस ऑफिसर्स ने भी सुझाव दिए थे। उसके पश्चात परामर्श का दौर शुरू हुआ। भारत के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी स्वयं 158 ऐसी बैठकों में उपस्थित रहे। इस तरह के व्यापक विचार विमर्श के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि न्याय, समानता और निष्पक्षता पर आधारित तीनों कानूनों के लिए राष्ट्र की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ने एक राय से मत दिया है। इसके लिए जम्मू कश्मीर एवं संपूर्ण राष्ट्र, मैं समझता हूं कि भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री का आभारी है। 2022 में लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश का आह्वान करते हुए कहा था कि हम सभी को गुलामी की मानसिकता और गुलामी के सारे चिन्ह इस देश से जल्द मिटाने होंगे। शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल नायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 जय। जैसे हमने अभी प्रोग्राम देखा अंदर, तो सभी जो स्पीकर से हाईलाइट किया है इस चीज़ को
इसके चलते हुए मेरे डिस्ट्रिक्ट में हमने 500 से जो ऊपर कर्मचारी हैं हमारे पुलिस के, उनको ट्रेंड किया है। हमने मास्टर ट्रेनर भी यहाँ ट्रेंड किए हैं। हमने स्पेशल वे हमारे रिफाइन करके 64 IO को तैयार किया है, जिसमें एक स्पेशल ऐप होती है जिसमें एविडेंस हमने लेना होता है, वीडियो ऑडियो, उसमें भी उनका हमने प्रॉपर डेमो भी किया है। CCTVs के साथ इसको लिंक किया है। ICGS सिस्टम है, उसमें हमने उनकी ID बनाई है। इसके अलावा एक आईगार्ड कर्मयोगी ट्रेनिंग एक ऐप है, उस पर भी हमारे जो ऑफिसर्स हैं ट्रेंड किए गए हैं। यहाँ जैसे आज आपने देखा थाना दिवस हुआ है, ज़िला किश्तवाड़ के जितने भी 6 पुलिस स्टेशन हैं, इस वक्त थाना दिवस का कार्यक्रम चल रहा है। की तारीख का एक बहुत ही अहम दिन है। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन आप सब जानते हैं कि अभी तक हमारे देश में जो कानून थे वो अभी अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून थे। लेकिन आज 1 जुलाई 2024 से नए कानून जो है हमारे देश में, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के नए कानून, 3 नए कानून जो है से लागू होंगे। इन कानून में बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई है। देखिए, एक ज़माना था जब हम रिसोर्सेज नहीं थे, जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी का दौर है। तो मौजूदा दौर को देखते हुए ज़रूरत इस बात की पड़ी कि क्यों ना इस तरह के कानून लाए जाएं जो आजकल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हों। अब यहाँ अंदर भी आप जो प्रोग्राम अभी तक देख रहे थे, काफ़ी एक्सपर्ट्स ने बात की, चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर ने तफसीलन बात की, और ये बात सब लोग जानते हैं कि अभी जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो 1947 से पहले तक का था, और ज़रूरत पड़ी कि अब नया जो है वो नए कानून लाए जाए। मोटे मोटे तौर पर कुछ बातें बताना चाहूँगा जो इस नए कानून में है, जिनकी रूह से जो है आम लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। सबसे पहली बात यह है कि अदालतों में मुकदमे बहुत देर से रवां हैं, खासकर क्रिमिनल केसेस, क्योंकि क्रिमिनल केसेस कोई सीमा नहीं होती। सिविल प्रोसीजर कोर्ट्स में वक्तन फ़क्तन अमेंडमेंट्स हुई, उसमें टाइम फ्रेम फिक्स कर दिया गया, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इस तरह की अमेंडमेंट्स नहीं आई थी जिसमें कोई टाइम फ्रेम फिक्स होगा। अब जो है टाइम फ्रेम फिक्स हुआ है, यानी अगर आपका चालान कोर्ट में पेश होता है तो चालान पेश होने के एक सीमा ने रख दी है कि उस सीमा के अंदर अंदर जो है उस चार्ज फ्रेम होगा। उसके बाद जब ट्रायल कंप्लीट होता है, शहादतें होती हैं, बहस होती है, उसके बाद कई सालों तक हमने देखा कि मुकदमे जो हैं वो फैसले के लिए रह जाते हैं। लेकिन अब इसमें भी एक सीमा फिक्स कर दी गई है कि जब आपका ट्रायल कंप्लीट होगा तो एक टाइम फ्रेम फिक्स कर दिया गया है कि उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर जो है उसकी जजमेंट जो है अनाउंस होगी। अब जीरो FIR का कंसेप्ट पहले था लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं था, अब जीरो FIR का कंसेप्ट है। आप कहीं भी बैठ करके FIR लॉन्च कर सकते हो, आपको पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर FIR लॉन्च करने की जरूरत नहीं। आप ईमेल के द्वारा, आप SMS के द्वारा जो है वो FIR लॉन्च कर सकते हैं। 3 दिन के अंदर अंदर आपने जाकर पुलिस स्टेशन में वहाँ पे सिग्नेचर्स करने। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, क्योंकि एक नए कानून है, इस पर अगर तफसील से बात करें तो कई घंटे लग सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर मैं ये बता दूं कि कानून की जो बेसिक तरमीम हुई है, जो अमेंडमेंट हुई है, जो चेंज हुई है, पहले इंडियन पिनल कोड था, यानी ये पिनल लॉ था, ये अपराधी को सजा देने के लिए बनाया गया था। लेकिन अब ये न्याय संहिता है, अब ये जस्टिस देने के लिए कहा गया, जिसमें विक्टिम की जस्टिस, सोसाइटी के तय उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कहीं ना कहीं एक टाइम फ्रेम फिक्स कर दिया जिससे ना सिर्फ विक्टिम बल्कि एक्यूज, कभी कभार क्या होता है कि बेकसूर लोगों को उल्टे झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है और उन्हें भी अपने बेकसूरी, अपनी इनोसेंस को साबित करने के लिए कई साल लग जाते हैं। लेकिन अब टाइम फ्रेम फिक्स है और उस टाइम फ्रेम के अंदर मुकदमों का निपटारा होगा। हमें उम्मीद है कि लोगों को इस नए कानून से फ़ायदा होगा, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आप लोग मीडिया के माध्यम से या स्कूलों में, बाकी जगहों पर इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स हों, ताकि लोगों को ये लगे कि वाकई में जो जदीद दौर और जदीद टेक्नोलॉजी के हिसाब से अब कवानीन में तरमीम हुई है।